Hari Om. Om Namah Shivaya. So I'm no spiritual guru. I'm not a spiritual guru. I'm just somebody who's naturally inclined towards learning Sanskrit and also learning the vast literature which is available for us to understand a range of different topics related to the Sanatan Dharma or Hinduism, as we call it these days. And it's a great exercise for me to learn Sanskrit and read its Hindi translation. But it also gives me an opportunity to read about and talk about the topics which are extremely interesting to many folks. And unfortunately, because we don't have access to the shastras, the literature, I didn't have it growing up. For example, now that we have it freely available on internet and stuff, it's also important to really read about certain topics like what is linga, what is Shiv Linga, why we worship it, and what does it really mean? And from that standpoint, today's lecture, today's talk, today's reading will be extremely enlightening to all of you that why we, the Sanatanis, worship Bhagwan Shiva in the form of ling. So I'll read in Sanskrit and then the meaning in Hindi, and I will also try to translate it. And my translation may not be perfect because I'm not a translator, but I'll try my best. The goal is essentially to learn about it. Many in our community don't know why and what and how. So now that I have this opportunity, some time, I would talk about it. So, so this comes from the 17th chapter of Linga Puran. Linga Puran is one of the Puranas, Puran, and it comes in the 17th chapter, 1-7. ब्रह्मा तथा विष्णु के समक्ष ज्योतिर्मय महालिंग का प्राकट्य. Appearance of the bright illuminating, the biggest symbol. The word linga means symbol in English. Linga means symbol. Just like we say Purushling and Striling and Napunsankling, Napunsakling, Purush. So it means symbol in Sanskrit, in English. So appearance of bright illuminating linga or the symbol in front of Lord Brahma and Vishnu. ब्रह्मा और विष्णु द्वारा हंस और वराह रूप धारण कर लिंग के मूल स्थान का अन्वेषण. Anveshan means research. So Lord Brahma, Bhagwan Brahma, and Vishnu, they take the appearance of Hans and Varaha, their avatar, and go all the way down and up to determine, to research the linga, the symbol, which appeared as a bright illuminating symbol in front of them. लिंग मध्य से शब्दमय उमा महेश्वर का प्रादुर्भाव, appearance of Uma and Maheshwar from the middle of the ling, the symbol, और ईशान आदि 5 शिव रूपों की उत्पत्ति, emergence of the 5 different forms of Shiva. So it starts by, as usual, Suta Rishi, one of the sages, asking questions, and then range of other people responding, particularly Rom Hirsch Rishi, and Pitamaha, which here is referring to Brahmaji. Okay? Suta Uvacha Evam Sankshepatāh Proktaha Sadyādīnām Samudbhavah Yah Pate Shrunayuda Yah Pate Shrunu Yadvapi Shravayedvadvijottaman.
स याति ब्रह्म सा युज्यम प्रसादात् परमेष्ठिनः. And then Rishis say, Rishi Uvachah, Katham lingam bhulinge samabhyarchya sasankaraha kim lingam kastatha lingi sutavaktu miharhasi. Then to that Romharshan Uvach, Romharshan Rishi says, Sutji says, Evam devascha rishayah प्राणिपत्य प्रणिपत्य पितामह. तो सूत जी बोले, सूत जी से, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के सद्योजात आदि अवतारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया. जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सुनाता है, वह शिव जी के अनुग्रह से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है. He is essentially telling about the descriptions of different avataras of Bhagwan Shiv, and then highlights the importance of listening to this great scripture. So all the rishis then ask, Rishaya Uchu, Rishigan Uvach, Rishigan Bole, हे सूत जी, लिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा उस लिंग में शंकर जी की उपासना कैसे की जानी चाहिए, लिंग क्या है तथा लिंगी कौन है, आप हमें यह बताइए. So they're asking him that how did the ling, the symbol, came into existence, and how do we worship Lord Shiva in the form of that symbol, linga? What is ling? What is that symbol, and who is lingi? Please tell us. So Romharshan Sut ji says, बोले, बताए कि हे ऋषियों, इसी प्रकार अत्यंत निवेदन पूर्वक देवताओं ने भी पितामह ब्रह्मा से पूछा था कि हे भगवान, यह लिंग कैसे उत्पन्न हुआ तथा लिंग में महेश्वर रुद्र का किस प्रकार पूजन होना चाहिए, लिंग क्या है तथा लिंगी कौन है. इस पर वे ब्रह्मा बोले, क्या बोले कि प्रधान को लिंग तथा परमेश्वर को लिंगी कहा गया है. प्रधान को लिंग तथा परमेश्वर को लिंगी कहा गया है. So same question was asked to Lord Brahma, and then Lord Brahma is explaining, is going to tell the story behind what is ling and why people worship, and how this practice started. रक्षार्थं बुधो मह्यं विष्णोस्त्वमासितुस्रोत्तमाः. रक्षार्थं बुधो मह्यं विष्णोः त्वासित सुरोत्तमाः. वैमानिके गते सर्गे जनलोकं सहर्षिभिः. स्थिति काले तदा पूर्णे ततः प्रत्याहृते तथा. चतुर्युग सहस्रान्ते सत्यलोकं गते सुराः. विनाधिपत्यं समतां गतेन्दे ब्रह्मणो मम. शुष्के च स्थावरे सर्वे त्वनावृष्ट्या च सर्वशः. पशवो मानुषा वृक्षाः पिशाचाः पिशिताशनाः. गन्धर्वाद्याक्रमेणैव निर्दग्धा भानुभिः. एकार्णवे महाघोरे तमो भूते समन्ततः. सुश्वापास्भसि योगात्मा निर्मलो निरुप्लवः. तो पिता ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रधान को लिंग तथा परमेश्वर को लिंगी कहा जाता है. हे उत्तम देवताओं, यह मेरी तथा विष्णु की रक्षा के लिए समुद्र में प्रकट हुआ था. फॉर द सेफ्टी ऑफ भगवान विष्णु एंड भगवान ब्रह्मा, इट केम इनटू appearance, it appeared in the ocean. जब देवताओं की सृष्टि समाप्त हो गई, तब वे देवता ऋषियों के साथ जन लोक चले गए और पुनः स्थिति काल के पूर्ण होने पर
इसके बाद 1000 चतुर्युगों के अंत में पुनः प्रलय के उपस्थित होने पर वे सत्यलोक चले गए। उस समय मैं ब्रह्मा बिना किसी आधिपत्य के साम्य अवस्था को प्राप्त था। इस प्रकार अंत में अनावृष्टि के कारण सभी स्थावर पदार्थों के सूख जाने पर सभी और समस्त पशु, मनुष्य, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि क्रम से सूर्य की किरणों से दग्ध हो गए। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन or loss of creation, when the sun was shining very bright and it was too hot because of that, and all the humans and animals and rakshasas and pishachas and all, they were really suffering from the terrible heat from the sunshine. उस समय तत्पश्चात चारों ओर समुद्र के व्याप्त हो जाने पर तथा घोर अंधकार छा जाने पर योगात्मा निर्मल, उपद्रव रहित, 1000 सिरों वाले, 1000 नेत्रों वाले, 1000 पैरों वाले, 1000 भुजाओं वाले विश्वात्मा, सब कुछ जानने वाले, सभी देवताओं तथा संसार की उत्पत्ति करने वाले, रजोगुण से युक्त होने के कारण ब्रह्मा, तमोगुण से युक्त होने के कारण स्वयं शंकर, सत्वगुण से युक्त होने के कारण सर्वव्यापी विष्णु, सबकी आत्मा होने के कारण महेश्वर, काल आत्मा, काल रूप, नाभि वाले शुक्ल कृष्ण गुणों से रहित नारायण, महान बाहु वाले तथा सत असत से युक्त सर्वात्मा जल के मध्य में शयन करने लगे। उन्हें इस प्रकार जल स्थित कमल पर सोते हुए देखकर मैं उस क्षण उनकी माया से मोहित हो गया और उन सनातन को हाथ से पकड़कर उठाते हुए क्रोधपूर्वक मैंने उनसे कहा कि तुम कौन हो, यह मुझे बताओ। तत्पश्चात मेरे तेज तथा दृढ़ हस्त प्रहार से शेषनाग रूपी शैया से उठकर इंद्रियों को वश में रखने वाले वे प्रभु उसी क्षण उठ बैठे। इसके बाद निद्रा से विक्लिन्न स्वच्छ कमल सदृश नेत्रों वाले प्रभायुक्त भगवान हरि ने अपने सम्मुख विराजमान मुझ ब्रह्मा को देखा और उन भगवान ने सैया से उठकर थोड़ा हंसते हुए मुझसे मधुर मधुर वाणी में कहा कि हे महाद्युते, हे वत्स, हे पितामह, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। तो this is what Brahmaji is telling, that when all this was going on, Lord Vishnu was sleeping on his Sheshanag, Shayya, and then he characterizes the different characteristics of Bhagavan Brahma, and then tells that when he saw him comfortably sleeping, he went and asked him that, who are you? Okay, and why are you sleeping and stuff like that. So Bhagavan Vishnu, he opens his eyes and he says that, hey, Pitama, hey, Brahmaji, you are welcome. So that is what he says. Sahasra Sirsha Vishwatma, Sahasrakshah Sahasrapat, Sahasrabahu Sarvagyah, Sarvadevodbhavah, Sarvadevo Bhavadbhavah, Hiranyagarbho Rajasa Tamasa Shankara Swayam, सत्त्वेन सर्वगो विष्णु सर्वात्मत्वे महेश्वरः, कालात्मा कालनाभस्तु शुक्ला कृष्णस्तु निर्गुणः, नारायणो महाबाहुः सर्वात्मा सदसन्मयः, तथा भूतमहं दृष्ट्वा शयानं पंकजक्षणं माया मोहितस्तस्य तमवोच चमर्षितः, कस्त्वं वेदति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनं, तदा हस्तप्रहारेण तीव्रेण स दृढ़ेन तु, प्रबुद्धो हि शयस्नात् समासीनः क्षणं वशी ददर्श निद्रा विक्लिन्न नीरज मल्ललोचना, मामग्रे संस्थितं भासा ध्यासिति भगवान् हरिः, आह चोत्थाय भगवान् हसन्माम मधुरं सकृत्, स्वागतं स्वागतं वत्स पितामह महाद्युते, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्वं सुसर्षभा। So he says, he welcomes Bhagavan Vishnu welcomes Lord Brahma, and he says, you are welcome, हे श्रेष्ठ देवताओं,
उनका वह वचन सुनकर रजोगुण से युक्त होने के कारण शत्रुतापूर्ण भाव से मैंने मुस्कुराकर उन जनार्दन से कहा, सो ही वॉज फुल ऑफ रजोगुण। भगवान ब्रह्मा वॉज फुल ऑफ रजोगुण एट दैट टाइम, एंड इसलिए उन्होंने कहा, ही सेड समथिंग लाइक दिस, कि टू विष्णु, ही सेज दिस टू विष्णु, भगवान विष्णु, हे अनग, सृजन तथा संहार करने वाले मुझ ब्रह्मा को तुम वत्स वत्स इस प्रकार संबोधित करते हुए जैसे गुरु शिष्य से कहता है, उस प्रकार से मुस्कुरा कर क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू कॉलिंग मी हे वत्स, हे वत्स? एंड so he developed some animosity. Bhagavan Brahma had a little feeling of animosity against Bhagavan Vishnu, and he says that, why are you calling me Vatsa, Vatsa? Why are you calling me that? Huh? You're calling me as if like you're my teacher. You're my, just like the teacher calls the students. You're calling me like that, and you're laughing and you're smiling at that. तो वैसा कहते हैं, रजसा बद्ध वैरश्च तमवाचम जनार्दनम भाषसे वत्स वत्सेति संग संहार कारणम मामिहान्तः स्मितं कृत्वा गुरुः शिष्यमिवानघ कर्तारं जगतां साक्षात् प्रकृतैश्च प्रवर्तकम्। जगत के साक्षात रचयिता, प्रकृति के प्रवर्तक, सनातन अजन्मा पालन करता, विश्व के उत्पत्ति कारक ब्रह्मा, विश्वात्मा विधाता तथा धारण करता मुझ कमल नयन पितामह से मोहयुक्त होकर इस प्रकार क्यों बोल रहे हो? Why are you talking like this to me? I am the creator. I created this universe. I was never born. I maintain this universe. Why are you talking to me like this? किमर्थम भाससे मोहाद दुक्तमर्हसि स्थावरम सोपि मामाह जगताम कर्ताहमिति लोकय। तो इसका कारण मुझे आप शीघ्र बताइए। भरता हरता भगवान, भरता हरता भवानांगादवतीर्णो ममाययात् विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायण मनामयम्। भरता हरता भवानांगादवतीर्णां ममाव्ययात् विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायण मनामयम्। इस पर उन्होंने भी मुझसे कहा, संपूर्ण जगत का सृष्टिकर्ता, पालन करता तथा संहार करता मैं विष्णु ही हूं, ऐसा जानो, और तुमने भी मुझ शाश्वत परमेश्वर के अंश से ही अवतार ग्रहण किया है। फिर भी तुम मुझ जगतपति नारायण, रोग विकार रहित परम पुरुष परमात्मा, सभी से आवाहित होने वाले पुरुषच्युत अच्युत ऐश्वर्य संपन्न तथा विश्व की उत्पत्ति के कारण स्वरूप मुझ विष्णु को भूल गए हो, किंतु इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, यह सब तो मेरी माया द्वारा ही रचा गया है। सो भगवान विष्णु इज टेलिंग हिम दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, I am the maintainer, I am the destroyer, I am the Vishnu, and I am the eternal Parmeshwar, eternal God, and you came out of me. You emerged out of my body. You came from me. And still, to the originator of this Jagat, the world, me, the Narayan, who is without any fault, without any disease, without any error, I am the Param Purush, Purushottama, Paramatma. I am the one who everyone calls for all the yagyas. I am the Aishwarya Sampan. I am the cause of the creation. You forgot me and you're asking me this question? But don't worry, this is not your fault. This is just because of the illusion, the Maya that I have created. So it is all because of me. Purusham Paramatmanam Puruhutam Purushtutam Vishnumachyutam Ishanam Vishwasya Prabhavodbhavam Tavaparado Nasteyatra Mama Maya Kritam Twidam Shruno Satyam Chaturvaktram Sarvadeveshwaro Hyayam. So listen to me. Listen to me. Who? Chaturvaktram Sarvadeveshwaro Yaham. मेरी बात सुनो, हे चार मुख वाले ब्राह्मण,
तुम यह सत्य जानो कि सृष्टि का कर्ता पालक संहारक तभी तथा सभी देवताओं का स्वामी भी मैं हूं, मेरे सदृश ऐश्वर्य वाला और कोई नहीं है। He tells भगवान ब्रह्मा that, hey, four-headed Brahman, four-headed Lord Brahman Pitamaha, recognize the following truth, that the originator, the maintainer, and the destroyer of this whole creation and the gods of the gods is me, the Vishnu. And there is nobody as Aishwaryavan as me. Hey Brahma, I am the Param Brahma. I am the Tattva, the main Tattva of the creation. I am the main light. Ahameva Param Jyoti Paramatma Tvaham Vibhu Yadrishtam Shutam Sarvam Jagatyasmin Characharam. हे चतुर्मुख, इस जगत में जो भी समस्त स्थावर जगम जंगम वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं अथवा जिनके बारे में सुना जाता है, उन सबको मुझसे व्याप्त किया हुआ जानो। आई एम इनसाइड आई एम इनसाइड एवरीथिंग। मुझे हर चीज में व्याप्त मानो, सब चीज में। देखो, प्राचीन काल में मैंने ही स्वयं 24 तत्व में व्यक्त दृष्टि रची है। नित्य अंत को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म अति सूक्ष्म बद्ध जीव, क्रोध से उत्पन्न अन्यान तामसी सृष्टि तथा आप ब्रह्मा सहित अनेक ब्रह्मांड मेरी माया के प्रभाव से ही विरचित हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यू योरसेल्फ, भगवान ब्रह्मा, is under the influence of my maya, the illusion that I have created. नित्यांताह्याणवो बद्धाः सृष्टा क्रोधोद्भवादयः प्रसादाद्धि भवानण्डान्यनेकेकानिह लीलया सृष्टा बुद्धिर्मया तस्यामहङ्कारस्त्रिधा ततः तन्मात्र पंचकं तस्मान् मनः षष्ठेन्द्रियाणि च आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इत्युक्तवती तस्मिंश्च मयि चापि वचस्तथा आवयोश्चाभवद्युद्धं सुघोरं रोमहर्षणं प्रलयार्णवमध्ये तु रजसा बद्धवैरयोः एतस्मिन्नन्तरे लिङ्गं भवच्चोभयोः पुरः विवादशमनार्थं हि प्रबोधार्थं च भास्वरम्। तो ही सेज, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने ही बुद्धि की रचना की तथा उसमें 3 प्रकार के अहंकारों सात्विक राजस तामस का निर्माण किया। आई एम द वन हु क्रिएटेड द बुद्धि, द इंटेलिजेंस, बट इन दैट आई पुट द अहंकार, द सेंस ऑफ प्राउड, बट इन अ नेगेटिव वे। इसी प्रकार अपनी माया से 5 तन्मात्राएं एवं मन, इंद्रियां, आकाश आदि 5 महाभूतों का भी सृष्टि मैंने ही किया। यह वचन कहने के अनंतर रजोगुणों की वृद्धि से परस्पर शत्रुता भाव प्राप्त हम दोनों में उस प्रलय सागर के मध्य भीषण रोमांचकारी संग्राम होने लगा। So it's Lord Brahma who is telling the story. So he says that after this, after he said this, there started a war between him and I, between Vishnu and Brahma, and this war was happening in the Pralay Sagar. So we are in the time of Pralay, when nothing existed. So everything in the universe, it goes through Pralay, destruction, when everything becomes, nothing. And that's when only the Vishnu and Brahma and Bhagavan Shiva, the Tattva of the universe. All of this, to me, sounds like the story of creation, at least as envisioned by our rishis. But it's pretty interesting. So he says ki at that time, I, because of the animosity, the feeling of animosity, and Bhagavan Vishnu, we started having this fight.
एंड दिस वाज अ बिग फाइट, वेरी रोमांचकारी संग्राम होने लगा, बहुत रोमांचकारी संग्राम होने लगा। इसी बीच हम दोनों की कलह को दूर करने तथा ज्ञान प्रदान करने के निमित्त एक दीप्तमान लिंग हम लोगों के समक्ष प्रकट हुआ। So around when we are fighting, to prevent us from further fighting and to give us knowledge, gyan, spiritual knowledge, a very bright symbol came in front of us or appeared in front of us. हमारे सामने एक दीप्तमान लिंग, bright symbol appeared. वह लिंग हजारों अग्नि ज्वालाओं से व्याप्त, सैकड़ों कालाग्नि के सदृश, क्षय तथा वृद्धि से रहित, आदि मध्य अंत से हीन, अतुलनीय, अवर्णनीय, अव्यक्त तथा विश्व का उत्पत्ति कर्ता स्वरूप था। So that bright symbol that appeared in front of them, which stopped them from fighting and was meant to give them knowledge, it was extremely bright. And then he's making comparisons with things, essentially highlighting how big it was, how incomparable it was, how indescribable it was. उस लिंग की हजारों ज्वालाओं से भगवान विष्णु तथा मैं दोनों लोग मोहित हो गए। We both got interested in that symbol which had lot of fire in it, both भगवान विष्णु and भगवान ब्रह्मा। फिर विष्णु ने मुझसे कहा कि हमें अग्नि अद्भुत इस लिंग का पता लगाना चाहिए। भगवान विष्णु says that we should go out and figure out what's going on. एतदर्थ मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाता हूं और आप प्रयत्न पूर्वक शीघ्र इसके ऊपर जाइए। सो आई विल गो डाउन एंड यू गो अप। हे देवताओं, ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर लिया और मैं भी शीघ्र हंस के रूप को प्राप्त हो गया। उसी समय से मुझ ब्रह्मा को विराट स्वरूप वाले भगवान विष्णु हंस कहने लगे। जो प्राणी हंस हंस नाम से मेरा कीर्तन करता है वह हंस तत्व को प्राप्त होता है। So Bhagavan Vishnu went down in the form of Varaha avatar, and Bhagavan Vishnu takes the face of Hans, the swan. And then he highlights that people who remember by Hans name, they achieve the Hansa Tattva. हे देवताओं, उस समय मैं अत्यंत श्वेत वर्ण का था। At that time I was white. मेरे नेत्र अग्नि के समान थे। My eyes were that of fire. और मैं सभी ओर से पंखों से युक्त था। And I had the wings from all side. इस प्रकार हंस रूप में मैं मन रूपी वायु के वेग से उड़कर ऊपर की ओर गया। So I took the form of the swan and I used the mind. We talk about mind in the spiritual world as very fast, the fastest of the fast. Mind can run at any rate, and one moment you are here, another moment you are in other part of the world thinking about something else. So Bhagavan Brahma uses that expression and says that I took the form of Hans, the mana, the mind, and then ran after uphill to figure out what's going on with the fire. Where does it come? What is it about? उधर विश्वात्मा नारायण विष्णु भी इस 10 योजन चौड़े तथा 100 योजन लंबे और नीले अंजन के समूह सदृश मेरु पर्वत तुल्य शरीर वाले, श्वेत तथा तीक्ष्ण दृष्टांकुर एवं विशाल थूथन वाले, छोटे छोटे पैरों वाले, विचित्र अंगों वाले, प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान, दृढ़, अनुपममय, भीषण शब्द तथा सर्वथा अपराजेय कृष्ण वराह का रूप धारण करके उस अग्निस्तंभ लिंग के नीचे चले गए। So he took the Varaha avatar and he went downhill to figure out what's going on. इस प्रकार विष्णु भगवान 1000 वर्ष तक वेग पूर्वक नीचे की ओर जाते रहे। So Lord Vishnu kept going for almost 1000 years with a great speed downhill to, किंतु वराह रूप विष्णु इस लिंग के मूल का अल्पांश भी नहीं देख सके। But Bhagavan Vishnu was unable to see even a small piece, small part of that Agni Stambha.
शत्रुओं का दमन करने वाला मैं ब्रह्मा भी उस लिंग का अंत जानने की इच्छा से पूरे प्रयास के साथ शीघ्रता पूर्वक ऊपर की ओर जाता रहा, पर मुझे भी कुछ पता नहीं चला। शत्रुओं का दमन करने वाला मैं ब्रह्मा भी जाता रहा, पर मुझे कुछ पता नहीं चला, और छोर नहीं समझ में आया। ज्वाला माला सहस्राढ्यम कालानल शतोपमम क्षया वृद्धि विनिर्मुक्तम अधि मध्यानतवर्जितम अनौपम्यमनिर्देश्यमव्यक्तं विश्वसम्भवं तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान् हरिः मोहितं प्राह मामत्र परीक्षावाग्निसम्भवम् अधो गामिष्याम्यनलस्तम्भस्यानुपुमस्य च भवानूर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम् एवं वहाहृत विश्वात्मा स्वरूपमकरोत्तदा वराहमहमप्याशु हंसत्वं प्राप्तवान् सुराः तदा प्रभृति मामाहुर्हंसं हंसो विरीडति हंस हंसेति यो ब्रूयान् मां हंस स भविष्यति सुश्वेतो ह्यानलाक्षश्च विश्वतः पक्षय संयुतः मनोनीलजवो भूत्वा गतोऽहं चोर्ध्वतं सुराः नारायणोऽपि विश्वात्मा नीलाञ्जनचर्योपमं दशयोजनविस्तीर्ण शतयोजनमायतं मेरुपर्वतवर्षा वर्ष्माणं गौरतीक्षाणगृन्दष्ट्रिणं कालादित्यसमाभासं दीर्घघोरं महास्वनं ह्रस्वपादं विचित्रांगं जैत्रं दृढमनोपमं वराहमासितं रूपामस्थाय गतवानदः एवं वर्षसहस्रं तु त्वरन् विष्णुरघो गतः नापश्यदल्पप्यस्य मूलं लिङ्गस्य सूकरः तावत्कालं गतो ह्यूर्ध्वं महप्यारीसूदनः सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमिच्छया श्रान्तो यार्दृष्ट्वा तस्यान्महङ्कार दगो गतः तस्यान् महां मह अहंकार दगो गतः। तथैव भगवान् विष्णुः श्रान्तः सन्त्रस्तलोचनः सर्वदेवभवस्तूर्णामुत्थिता स महावपुः समागतो मया सार्धं प्रणिपत्य महामनः मायया मोहितः शम्भोस्तस्थो संविघ्नमानसः पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव चाग्रतः परमेश्वरं प्रणिपत्य मया सार्धं सस्मार किमिदं त्विति। तो तत्पश्चात, आफ्टर दैट, अहंकार पूर्वक ऊपर गया हुआ मैं, फुल ऑफ प्राउड, इट वॉज मी हु वेंट अप, उस लिंग का अंत ना देखकर अत्यंत थका हुआ, विदाउट सीइंग द एंड ऑफ द लिंग, दैट सिंबल, एंड सो मच टायर्ड, थका हुआ, नीचे लौट आया, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, आई केम डाउन, सो आई वॉज फुल ऑफ अहंकार and I was trying to find the north pole, the upper end of that linga, that symbol, and I could not find it. And उसी प्रकार सभी देवताओं के उद्भव करता तथा महान शरीर वाले वे भगवान विष्णु भी थकान एवं सत्रास भर के नेत्र के साथ लिंग का मूल न पाकर नीचे से ऊपर की ओर आ गए. And similarly, भगवान विष्णु also could not find the end, the lower end of that link, that symbol, and he came back. शंकर की माया से मोह को प्राप्त हुए महामना विष्णु मेरे साथ आकर परमेश्वर को प्रणाम करके व्याकुल मन से खड़े हो गए. सो भगवान विष्णु वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द माया, द इल्यूजन ऑफ शंकर जी. So he came and he prayed the Parameshwar, and very anxious, he stood there. And then he
prayed the Parameshwar from all sides, and then stood there, and he said, he started thinking that what is it that doesn't have the origin and the end? What is it that has no origin, no end? समागतो मया सार्धं प्रणीपत्य महामनाः माया मोहितः शम्भो तस्थो संविघ्नमानसः पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव चाग्रतः परमेश्वरं प्रणीपत्य मया सार्धं सस्मार किमिदं तिति। हे श्रेष्ठ देवताओं, उसी समय वहां प्लुत स्वर से युक्त ओम ओम ऐसा अत्यंत स्पष्ट शब्द रूप ना सुनाई दिया। सो दे स्टार्टेड हियरिंग all of a sudden, Om Om, the sound started appearing. Tada sama bhavat tatra nado vai shabda lakshanaha Om Om iti surashreshta suvyakta plutta lakshanaha। यह तीव्र शब्द क्या है, ऐसा मेरे साथ विचार करते हुए विष्णु भी खड़े रहे। तभी उन्होंने उस ओम नाद के अंत में लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अकार, उसके उत्तर भाग में उकार और उसके मध्य भाग में मकार देखा। आद्य वर्ण मकारं तु उकारं चोत्तरे ततः मकारं मध्यतश्चैव नादान्तं तस्य चोमिति। So he heard the sound Om. Bhagavan Vishnu stood there, and then they noted that in the southern part of the ling there was O, the Om, A, Akar. In the northern part there was U, Kar, the O, Om, and Madhya mein, in the middle there was Makar, Om, Ma. So Ukar, Akar, Ukar, Makar, they could see that. इस प्रकार सूर्य मंडल के समान आदि वर्ण आकार को लिंग के दक्षिण में, अग्नि के सदृश प्रतीत होने वाले उकार को उत्तर में तथा चंद्रमंडल के तुल्य मकार को मध्य में देखने के बाद उन पुरुष श्रेष्ठ विष्णु ने उसके ऊपर तुरीयातीत, अमृत रूप, कला रहित, विकार शून्य, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्य स्वरूप, बाह्य तथा आभ्यंतर से रहित, बाह्य तथा अभ्यंतर से रहित और बाह्य अभ्यंतर से युक्त, बाह्य तथा आभ्यंतर दोनों रूपों में स्थित, अंदर बाहर से रहित, अंदर बाहर से युक्त भरा हुआ, अंदर बाहर में स्थित, आदि मध्य अंत से रहित तथा आनंद के भी कारण स्वरूप, शुद्ध, प्योर, स्फटिक के सदृश प्रकाशमान प्रभु को देखा। सो विष्णु एंड ब्रह्मा जी, दे सॉ द प्रभु। अकार, उकार और मकार, अ, उ, म, ओम, तीन मात्राएं तथा बिंदु रूप अर्ध मात्रा स्वरूप वाला प्रणव ही नाद कहलाता है और वही ब्रह्म संज्ञा वाला है। ऋक, यजुः तथा सामवेद उन तीनों मात्राओं के रूप में विष्णु ही हैं। So then they're describing the meaning of Om. It comes with the sound A, U, Ma, Okar, Umkar, Makar, and they're comparing this with Rig Yajur and Samved. In that form, Bhagavan Vishnu has appeared, so he's comparing it to that. आद्यवर्ण मकारं तु अकारं चोत्तरे ततः मकारं मध्यतश्चैव नादान्तं तस्य चोमिति। सूर्यमण्डलवद् दृष्ट्वा वर्णमाद्यं तु दक्षिणे उत्तरे पावक प्रख्य मुकारं पुरुषर्षभः शीतांशुमण्डल प्रख्यं मकारं मध्यमं तथा तस्योपरि तदा पश्य क्षुद्ध स्फुटिक वत् प्रभुं तुरीयातीतममृतं निष्कलं निरुपप्लवं निर्द्वन्द्वं केवलं शून्यं बाह्याभ्यन्तरवर्जितं सबाह्य भयन्तरं चैव
सब बाह्यभ्यंतर स्थितम आदिमन्त्यरहित मानन्दस्यापि कारणं मात्रास्ति तस्त्र स्तर्वर्धमात्रं नादाख्यं ब्रह्म संज्ञितं ऋग्यजुः वै मात्रारूपेण माधवः वेदशब्देभ्य एवेशं विश्वात्मान च चिन्तयत् तदा भवदृश्रेद तदा भव तदा भवदृशिर्वेद तदा भवदृशि वेद ऋषेः सारतमं शुभम तदा भवदृशि वेदम ऋषेः सारतमं शुभम। उसी वेद रूप शब्द के द्वारा विष्णु ने विश्वात्मा ईश्वर शिव का चिंतन किया और उसी समय से अतीन्द्रिय दर्शक परम तत्व रूप कल्याणकारी वेद हुआ और उसी ऋषि वेद से विष्णु ने परमेश्वर शिव को जाना। तनेव ऋषिणा विष्णुर्ज्ञातवान परमेश्वरम। फिर देव उवाच, सो देवास आर टेलिंग दैट चिंतया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह। वाणी भी मन के साथ जिन्हें प्राप्त न कर लौट आती है, उन चिंता रहित भगवान रुद्र का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है और यही एकाक्षर प्रणव उस सृष्टि के परम कल्याण रूप सत्य आनंद तथा अमृत रूप परात्पर पर ब्रह्म का ही वाचक है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। सो ओम इज द symbol of the origin of the universe, the reason why the universe exists. It's the symbol of the Brahman. That is what we believe. That is what it's highlighting in this text. अप्राप्य तम निवर्तन्ते वाचस्तवेकाक्षरेण सह। अप्राप्य तम निवर्तन्ते वाचस्तवेकाक्षरेण सह। एकाक्षरेण तद्वाचमृतं परमाकारणं सत्यमानन्दमृतं परं ब्रह्म परात्परम् एकाक्षराद राख्यो भगवान कनकांगजः। उसी एकाक्षर प्रणव से अकार संज्ञक भगवान ब्रह्मा, उकार संज्ञक परम कारण स्वरूप विष्णु तथा मकार संज्ञक परमेश्वर नील लोहित का प्रादुर्भाव हुआ। सो फ्रॉम दैट प्रणव ओमकार, अकार संज्ञक भगवान लॉर्ड ब्रह्मा इज अकार संज्ञक, विष्णु इज उकार संज्ञक परम कारण स्वरूप भगवान विष्णु, मकार नील लोहित भगवान शिवा नील लोहित, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। अकार संज्ञ ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, उकार संज्ञक विष्णु मोह करने वाले तथा मकार संज्ञक शिव उन दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु पर सदा अनुग्रह करने वाले हैं। अ उमा ओम ब्रह्मा विष्णु महेश and Mahesh does anugraha on Brahma and Vishnu. सर्ग कर्ता त्वकराख्यो ह्युकाराख्यस्तु मोहकः मकाराख्यास्तयो नित्यमनुग्रह करो भवत्। मकार रूप भगवान शिव बीजवान, अकार रूप ब्रह्मा बीज तथा उकार रूप प्रधान पुरुषेश्वर विष्णु योनि कहे जाते हैं। मकार रूप शिव बीजवान, अकार रूप ब्रह्मा बीज तथा उकार रूप प्रधान परमेश्वर विष्णु योनि कहे जाते हैं। मकाराख्यो विभुर्बीजी यकारो बीजमुच्यते उकाराख्यो हरिर्योनिः प्रधान पुरुषेश्वरः बीजी च बीजं तद्यो निर्नादख्याश्च महेश्वरः बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः। नाद रूप महेश्वर स्वयं ही बीजी, बीज तथा योनि तीनों हैं। नाद रूप भगवान शंकर इज
हिमसेल्फ द बीजी, बीज एंड योनि, वे बीजी रूप महेश्वर स्वेच्छा से अपने को ही विभाजित करके प्रतिष्ठित हैं। इन बीजी रूपी परमेश्वर सिंह के लिंग से अकार रूप बीज ब्रह्मा, उकार रूप योनि विष्णु में गिरकर चारों ओर वृद्धि प्राप्त होने लगा और फिर स्वर्ण का अंड हो गया। सो फ्रॉम भगवान शिवा symbol, Brahma, which was the seed, and Vishnu, Yoni, the creator. So it fell and then it started getting bigger, and from that came the egg like golden egg appearing thing. इसके बाद एकाक्षर प्रणव को आदि अंश से आविष्टित करके यह दिव्य अंड बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। And after this egg like, the divine egg as it's called, it stayed in the water for a really long time. तदनंतर 1000 वर्षों के बाद साक्षात आदि रूप परमेश्वर ने जल में स्थित उस अजोद्भुत अंड को 2 भागों में कर दिया। And after like thousands of years, the original God, Adi Roop Parmeshwar, the very beginning of the creation, the Bhagavan, the Parmeshwar, he converted that divine egg into, he cut, or he made it into 2 parts. उस अंड के ऊर्ध्व स्थित हेममय पवित्र कपाल से आकाश तथा नीच के भाग से 5 लक्षणों से संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। एंड देन इट सेज दैट फ्रॉम दैट अपर पार्ट ऑफ द डिवाइन एग came the sky, appeared the sky, and from the lower half appeared the planet Prithvi. This is how they are explaining it. Deva uvacha चिंतया रोहितो रहितो रुद्रो वाचो यनमनसासः अप्राप्यतं निवर्तन्ते वाचस्य तेवकाक्षरेण सह एकाक्षरेण तद्वाच्य मृतं परम कारणम् सत्यमानन्दमृतं परम सत्यानन्दमृतं परम ब्रह्म परात् परम एकाक्षर राधकाराख्यो भगवान् कनकांगजः एकाक्षरा दुकराख्यो हरिः परम कारणम् एकाक्षरान्मकराख्यो भगवान् नील लोहितः सर्गकर्ता त्वकराख्यो ह्यूकाराख्यस्तु मोहकः मकाराख्यास्तयोर्नित्यम् अनुग्रह करो भवत् मकाराख्यो विभुर्बीजी ह्यकारो बीजमुच्यते उकाराख्यो हरिर्योनिः प्रधान पुरुषेश्वरः बीजी च बीजं तद्यो निर्नादख्याश्च महेश्वरः बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः अस्य लिंगाद् भूद्बीजमकारो बीजिनः प्रभो उकार्यो नो निक्षिप्तं वर्धत समन्ततः सौवर्णम भवच्चाण्डमावेष्ट्याद्यं तदक्षरम् अनेकाब्दं तथा चाप्सु दिव्यमण्डं व्यवस्थितं ततो वर्ष सहस्रान्ते द्विधा कृतमजोद्भवम् अण्डमप्सु स्थितं साक्षादाख्येनेश्वरेण तु तस्याण्डस्य शुभं हैमं कपालं चोर्ध्वसंस्थितं यज्ञे यद्योस्तदपरं पृथ्वी पंचलक्षणा। उसी अंड से आकार संज्ञक चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। फ्रॉम दैट डिवाइन एग केम इनटू बीइंग द 4-headed भगवान ब्रह्मा। अतः वही लिंग रूप प्रणव सभी लोगों की सृष्टि करने वाला है तथा वही प्रणव आकार उकार मकार 3 प्रकार का ईश्वर है। So and that linga became the source of the creation all over, and the same which comprise of a uma om pranav, so it has all the 3 forms of gods. So when we are worshipping linga, we are praying the
उमा, ओम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. So, सम्मान तस्मादंडोद्भवो यज्ञे, तस्मादंडोद्भवो यज्ञे त्वकाराख्य चतुर्मुखः, त्वकाराख्यश्चतुर्मुखः, स सृष्टा सर्वलोकानां, स सृष्टा सर्वलोकानां, स एव त्रिविधः प्रभुः, स एव त्रिविधः प्रभुः. एवमोमिति प्रोक्तं मिथ्याहर्युजसां वराः, यजुषां वचनं श्रुत्वा ऋचुः सामानि सादरम्. एवमेव हरे ब्रह्मन्नित्याहुश्रुतयस्तदा, ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छ्रुतिसम्भवैः. मन्त्रे महेश्वरं देवं तुष्टाव समूहोदयम् आवयोस्तुति सन्तुष्टौ लिंगे तस्मिन् निरञ्जनः. तो इस प्रकार वह प्रणव ओम, ओम रूप ब्रह्म कहा गया है, ऐसा यजुर्वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा है. और उन यजुर्वेद ज्ञाताओं के वचन सुनकर उस ऋग्वेद की ऋचाएं तथा साम मंत्रों ने भी आदरपूर्वक स्वीकार किया है. और इसी तरह सभी श्रुतियों ने उसी ओम को सदा हे हरे ब्रह्मन के रूप में संबोधित किया है. इस वेद वाक्य आदि से शिव को यथावत जानकर हम दोनों वैदिक मंत्रों से महादेव, देवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे. तो ओम शब्द जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनका ही स्वरूप है, और लिंग भी उन्हीं का स्वरूप है. लिंग इज लिंग symbolizes Brahma, Vishnu, Mahesh, and that's the source of creation, as was hypothesized, suggested, thought about, believed to be, whatever words you want to use, but that is how it should be constitute the meaning of linga. Furthermore, we'll discuss more as we go on reading remaining of this chapter and the subsequent chapters. We'll know more about it. So, एवमेव हरे ब्रह्मन्नित्याहुः श्रुतयस्तदा, ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छुस्ति संभवे. इस वेद वाक्य आदि से शिव को यथावत जानकर हम दोनों वैदिक मंत्रों से महोदय देवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे. भगवान शंकर की, भगवान महादेव की स्तुति जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मिलके करने लगे. हरिओम. इस वेद वाक्य आदि से जब करने लगे तो इसके बाद में बताते हैं कि हम दोनों के स्तवन से प्रसन्न होकर, आफ्टर दे वर्शिप महादेव, परमेश्वर, he got very happy and then what he does, हम दोनों के स्तवन से प्रसन्न होकर माया के आवरण से रहित, अंडर नो इन्फ्लुएंस ऑफ माया, द इल्यूजन, महेश्वर दिव्य शब्दमय रूप धारण कर, लॉर्ड महादेव, he acquired or he got the divine Shabdamaya Roop. He came in the form of Shabdamaya Roop, the appearance essentially characterized by the wordings. Okay, हंसते हुए उस लिंग में प्रकट हुए, and he appeared in that symbol, that ling. So Lord Mahadev, he appeared in that ling. आकार उनका मस्तक तथा दीर्घ आकार उनका ललाट कहा जाता है. अ इन ओम इज हिज हेड, दीर्घ आकार उनका ललाट कहा जाता है, द फोरहेड. इनका दाहिना नेत्र ईकार, लेफ्ट ईकार, बायां नेत्र उनका ऊकार, दाहिना कान उकार, दाहिना कान उकार उनका दाहिना कान, उकार बायां कान, रीकार उन परमेष्ठी महेश्वर का दायां कपोल, रीकार उनका बायां कपोल, री
तथा री क्रमशः उनके दाहिने तथा बाएं दोनों नासापुट, एकार ऊपरी ओष्ठ, ऐकार उनका प्रभु का नीचे का ओष्ठ, ओमकार, ओकार तथा औकार क्रमशः ऊपर और नीचे की दंत पंक्तियां, अम तथा अह उन धीमान देवदेव के क्रमशः ऊपर तथा नीचे के तालु, ककार आदि पंच अक्षर, क ख ग घ ङ उनके दाहिनी और ओर के 5 हाथ, इसी प्रकार चकार आदि 5 अक्षर बाईं ओर के 5 हाथ, टकार आदि पंच अक्षर दायां पैर, तकार 5 अक्षर बायां पैर, पकार उन परमेश्वर का उदर, फकार दाहिना पार्श्व, बकार बायां पार्श्व, भकार उनका स्कंध, मकार परम योनि महादेव शंकर का हृदय, यकार से लेकर सकार पर्यंत 7 वर्ण, यर लव श स स उन प्रभु के 7 धातु, हकार उनकी आत्मा, क्षकार उनका क्रोध कहा गया है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो कहते हैं, दे आर टेलिंग दैट कि लॉर्ड महेश्वर ही केम इन द फॉर्म ऑफ शब्दमय रूप धारण करके हंसते हुए उस लिंग में प्रकट हुए। ही केम इन द फॉर्म ऑफ शब्दमय रूप, शब्द वाणी, what we speak. And then that describing the Sanskrit alphabets, they're using the Sanskrit alphabets to describe his various bodily forms, bodily structures. Kakar, ka cha ta ta pa, kakar ka cha ta ta pa, that's the sequence. Kakar, ka kha ga nga nga, cha cha ja ja ta ta da da na, ta ta da da na, pa pa ba ba ma, yara lava, sha sa sa ha, chhatragya. This is how we learn in Hindi. So they're describing it as आकार उनका मस्तक, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अंगः, स्वर व्यंजन हिंदी में पढ़ते हैं। तो अकार उनका मस्तिष्क तथा दीर्घ आकार, अ आ ई ई, राइट, उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, these are, so it says that Bhagavan Mahadev came in that form, in the form of these शब्दमय रूप धारण करके हंसते हुए लिंग में। जो संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें भी महेश्वराणी सूत्र आता है, तो उसमें भी जो है भाषा किस प्रकार भगवान शंकर के नृत्य और उनसे ही लिया गया है, उनके डमरू की आवाज़ से लिया गया है। तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि शब्दमय रूप से भगवान शंकर की अलग अलग शरीर के अंगों का वर्णन मिल रहा है यहाँ पे। मंत्रे महेश्वरम देवम तुष्टाव समूहोदयम आवयो स्तुति संतुष्टो लिंगे तस्मिन् निरंजनः दिव्यम शब्दमय रूपम मास्थाये प्रहसन स्थितः अकारस्तस्य मूर्धातु ललाटं दीर्घमुच्यते इकारो दक्षिणे नेत्रम ईकारो वामलोचनम उकारो दक्षिणं श्रोतम ऊकारो वाम उच्यते रीकारो दक्षिणं तस्य कपोलं परमेष्टिनः वामं कपोल म्रीकारो लृ नासापुटे उभे एकारमोष्टमूर्धश्च ऐकारस्त्वधरो विभौ ओकारश्च तथौकारो दन्तपङ्क्तिद्वयं कृमात् अमस्तु तालुनीतस्य देवदेवस्य धीमतः कादि पञ्चाक्षराण्यस्य पञ्चहस्तानि दक्षिणे चादि पञ्चाक्षरण्येवं पञ्चहस्तानि वामतः तापि पञ्चराक्षरं पादस्त्वादीप पञ्चाहरं तथा पकारमुदरं तस्य फकार पार्श्वमुच्यते बकारो पार्श्व वाम पार्श्वे वै भकारं स्कन्धमस्य तथा मकारं हृदयं शम्भुर्महादेव देवस्य योगिनः यकारादि करान्ता विभोर्वे सप्तधातवः
हकार आत्मरूपं वै शकारः क्रोध उच्यते ते दृष्ट्वा उमया सार्धं भगवन्तं महेश्वरम्। प्रणम्य भगवान् विष्णुः पुनश्चाप पश्य दुर्गतः ओंकार प्रभवम मंत्रम कला पंचाक संयुतम। उसके साथ उन भगवान महेश्वर को देखकर पुनः उन्हें प्रणाम करके जब भगवान विष्णु ने ऊपर की ओर देखा, तब उन्हें ओंकार से उत्पन्न 5 कलाओं से युक्त बुद्धि विवेशक तथा सभी धर्म अर्थ को सिद्ध करने वाले शुद्ध स्फटिक तुल्य अत्यंत शुभ्र तथा 38 शुभ अक्षरों वाला पवित्र मंत्र ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादि पतिर्ब्रह्माणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो। दृष्टिगोचर हुआ यह मंत्र, दृष्टिगोचर हुआ, उन्हें दिखा। व्हेन ही लुक्ड अप ही सॉ दिस मंत्र दैट आई जस्ट रिसाइटेड। साथ ही गायत्री से उत्पन्न 4 कलाओं वाला 24 अक्षरों वाला युक्त तथा वश्यकारक हरित वर्ण अत्युत्तम मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र अथर्ववेद से उत्पन्न 8 कलाओं से युक्त 33 शुभ अक्षरों वाला कृष्णा वर्ण तथा अत्यंत अभिचारिक अघोर मंत्र अघोरेभ्योथ घोरेभ्यः घोर घोरतेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। यजुर्वेद से प्रादुर्भूत 8 कलाओं वाला श्वेत वर्ण वाला शांति कारक 35 अक्षरों से युक्त पवित्र सद्योजात मंत्र सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। एवं सामवेद से उत्पन्न रक्त वर्ण बाल आदि 13 कलाओं से युक्त जगत का आदि स्वरूप तथा वृद्धि संहार का कारण रूप 66 अक्षरों वाला उत्तम मंत्र वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो क्ल प्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्माथः नमः। दृष्टिगत हुए थे ये मंत्र उनको। ही सॉ दीज मंत्रास व्हिच आई जस्ट रिसाइटेड। इन मंत्रों 5 मंत्रों को प्राप्त कर भगवान विष्णु ने इनका जप करना आरंभ कर दिया। सो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दीज मंत्रास। हकार आत्मरूपं वै शकार क्रोध उच्यते तं दृष्ट्वा ऊमया सार्धं भगवन्तं महेश्वरं प्रणम्य भगवान् विष्णुः पुनश्चापश्य दूर्ध्वतः ओंकार प्रभवं मंत्रं कला पंचक संयुतं शुद्ध स्फुटिक संकाशं सुभाष्ट त्रिंशदक्षरं मेघाकराम बुद्ध्युः सर्वधर्मार्थ साधकं गायत्री प्रभवं मंत्रं हरितं वश्यकारकं चातुर्विंशति वर्णाढ्यं चतुष्कलमनुत्तमम् अथर्वमासितं मंत्रं कलाष्टक समायुतम् अभिचारिकमर्थ्यर्थं त्रयस्त्रिंशक्षुर्भाक्षरम् यजुर्वेद समायुक्तं पंचत्रिंशक्षुभाक्षरं कलाष्टक समायुक्तं सुश्वेतं शांतिकं तथा त्रयोदश कलायुक्तं बालाद्येह सह लोहितं समुद्भवं जगत्याद्यं वृद्धि संहार कारणं वर्ण षड्धिका षष्ठेरस्य मंत्रवरस्य तु पंचमंत्रांस्तथा लब्ध्वा जजाप भगवान हरि। तो इस प्रकार से जो है भगवान हरि भगवान विष्णु जो है ये मंत्रों का जाप करने लगे। अथ दृष्ट्वा कलावर्णं रज्जुः सामरूपिणम् ईशानमीश मुकुटं पुरुषास्यं पुरातनम् अघोर हृदयं हृद्यं वामगुह्यं सदाशिवं सद्य पादं महादेवं महाभोगीन्द्रभूषणं विश्वतः पावदनलं विश्वतोक्षीकरं शिवं ब्रह्मणोऽधिपतिं
सर्गस्ति संहार कारणम तुष्टाव पुनरिष्ट भैर्वागभर्वदमीश्वरम तुष्टाव पुनरिष्टाभिर्वाग्भिर्वरमदीश्वरम। तत्पश्चात समस्त कलाओं की कांति से युक्त ऋक यजु साम स्वरूप ईशान मंत्रस्य मुकुट वाले, तत्पुरुष मंत्र मुख वाले, अघोर मंत्र रूप करुणामय हृदय वाले, वामदेव मंत्र रूप सदा कल्याण कर गुह्य स्थान पाने वाले तथा सद्योजात मंत्र रूप चरणों वाले, विशाल सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, चारों ओर पैर मुख आंख धारण किए हुए, सृष्टि पालन संहार के कारण स्वरूप पुरातन पुरुष महादेव ब्रह्माधिपति शिव को देखकर भगवान विष्णु अभीष्ट स्तुति से उन वरदाता परमेश्वर ईशान का पुनः स्तवन करने लगे। सो लॉर्ड विष्णु स्टार्टेड प्रेइंग द प्रभु शंकर शिव जी after this, and with this the chapter 17 of लिंग पुराण ends. इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्व भागे लिंगोद्भवो नाम सप्तदशो अध्यायः। इस प्रकार श्रीलिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगोद्भव नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। So the key features are that linga refers to symbol. The context here is that of that Brahma and Vishnu. Vishnu developed some illusion, and he developed ahamkar, proud, and he started asking questions to Vishnu. Vishnu also had some proud, and all this was the maya of Bhagavan Shankar, Mahadev. And then they went on to fight, and once while they're fighting in that context, Bhagavan Shankar came, emerged. This is all during the time when the creation was completely destroyed and only these gods existed or were there. And during that time, Bhagavan Shankar emerged, came out in the form of the Mahaling, and that ling, that symbol, in that he emerged in the form of the Shabdarup, the voice form. So, and his body parts are described as the different alphabets in Sanskrit, Sanskrit alphabets or Hindi alphabets and Devanagari alphabets, as we call it. And that took away the ahamkar of both Vishnu, I think, and Brahma. I'm no expert on this topic, but this is how it appears to me after reading this text. And then at the end, once Vishnu and Brahma realized, recognized, heard about, saw, experienced Mahadev in the form of that Mahaling, Bhagavan Vishnu started praying Bhagavan Shiv, Bhagavan Mahadev. So that is one description about Ling. I'll keep talking about it and move on to chapter 18 next. विष्णु द्वारा की गई भगवान महेश्वर की स्तुति तथा उसका महात्म्य पढ़ेंगे. So we just finished the chapter 17 where it ended with Bhagavan Vishnu starting to do the stuti, the prayers of Bhagavan Mahashankar, Maheshwar. Vishnu uvacha ekaksharaya rudraya akarayatma rupine ukarayadi devaya vidyadehaya vai namaha तृतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने सूर्याग्नि सोमवर्णाय यजमानाय वै नमः अग्नये रुद्ररूपाय रुद्राणां पतये नमः शिवाय शिवमन्त्राय सद्योजाताय वेधसे वामाय वामदेवाय वरदायामृताय ते अघोरायातिघोराय सद्योजाताय रंहसे ईशानाय शमशानाय अतिवेगाय वेगिने नमोस्तु श्रुतिपादाय ऊर्ध्वलिंगाय लिंगिने हेमलिंगाय हेमाय वारिलिंगाय चांभसे शिवाय शिवलिंगाय व्यापिने व्योम व्यापिने
वायवे वायुवेगाय नमस्ते वायुव्यापिने तेजसे तेजसाम्भर्त्रे नमस्ते ज्योति अधिव्यापिने वामाय वामदेवाय वरदायामृताय ते अघोरायातिघोराय सद्योजाताय रंहसे ईशानाय शमशानाय अतिवेगाय वेगिने नमोऽस्तु श्रुतिपादाय ऊर्ध्वलिङ्गाय लिङ्गिने हेमलिङ्गाय हेमाय वारिलिङ्गाय चाम्भसे शिवाय शिवलिङ्गाय व्यापिने व्योमव्यापिने वायवे वायुवेगाय नमस्ते वायुव्यापिने तेजसे तेजसाम्भर्त्रे नमस्ते ज्योति अधिव्यापिने जलाय जलभूताय नमस्ते जलव्यापिने पृथिव्ये चान्तरिक्षाय पृथिवीव्यापिने नमः शब्दस्पर्श स्वरूपाय रसगन्धाय गन्धिने गणाधिपतये तुभ्यं गृह्याद् गुह्यतमाय ते अनन्ताय विरूपाय अनन्तानामयाय च शाश्वताय वरिष्ठाय वारिगर्भाय चोगिने संस्थिया भसां मध्ये आवयोर्मध्यवर्चसे गोत्रे हर्त्रे सदा कर्त्रे निधनायश्वराय च अचेतनाय चिन्त्याय चेतनाया सहारिणे अरूपाय सुरूपाय अनंगाय आंगहरिणे भस्मादिग्धशरीराय भानु सौभाग्निहेतवे श्वेताय श्वेतवर्णाय तुहीनाद्रिचराय च सुश्वेताय सुवक्त्राय नमः श्वेतशिखाय च श्वेतस्याय महास्याय नमस्ते श्वेतलोहितः सुराताय विशिष्टाय नमो दन्दुभिने हर शतरूप रूपाय नमः केतुमते सदा रिद्धि शोक विशोकाय पिनाकाय कर्पदीने विपाशाय सुपाशाय नमस्ते पाशनाशिने सुहोत्राय हविष्याय सुब्रह्मण्याय सूरिणे सुमुखाय सुवक्त्राय दुर्दमाय दमाय च कंगाय कंगरूपाय कंकणीकृतपन्नग सनकाय नमस्तुभ्यं सनातन सननंदन सनत्कुमार सारंगमारणाय महात्मने लोकाक्षिणे त्रिधामाय नमो वीरजसे सदा शंखपालाय शंखाय रजसे तमसे नमः सारसत्ताय मेघाय मेघवाहन ते नमः सुहाय विवाहाय विवादवरदाय च नमः शिवाय रुद्राय प्रधानाय नमो नमः त्रिगुणाय नमस्तुभ्यं चतुर्व्यूहात्मने नमः संसाराय नमस्तुभ्यं नमः संसारहेतवे मोक्षाय मोक्षरूपाय मोक्षकर्त्रे नमो नमः आत्मने ऋषये तुभ्यं स्वामिने विष्णवे नमः नमो भगवते तुभ्यं नागानां पतये नमः ओंकाराय नमस्तुभ्यं सर्वज्ञाय नमो नमः सर्वाय च नमस्तुभ्यं नमो नारायणाय च नमो हिरण्यगर्भाय आदिदेवाय ते नमः नमस्ते त्वजाय पतये प्रजानां व्यूहहेतवे महादेवाय देवानी नामीश्वराय नमो नमः सर्वाय च नमस्तुभ्यं सत्याय शमनाय च ब्रह्मणे चैव भूतानां सर्वज्ञाय नमो नमः महात्मने नमस्तुभ्यं प्रज्ञारूपाय वै नमः चितये चितिरूपाय स्मृतिरूपाय वै नमः ज्ञानाय ज्ञानगम्याय नमस्ते संविदे सदा शिखाराय नमस्तुभ्यं नीलकंठाय वै नमः अर्धनारीश्वराय अव्यक्ताय नमो नमः एकादशी विभेदाय स्थावणे ते नमः सदा नमः सोमाय सूर्याय भवाय भवहारिणे यशस्कराय देवाय शंकराय ईश्वराय च नमो अंबिकाधिपतये उमायाः पतये नमः हिरण्यबाहं वे तुभ्यं नमस्ते हेमरेतसे नीलकेशाय वित्ताय शितिकंठाय वै नमः कपर्दीने नमस्तुभ्यं नागांगभरणाय च वृषारूढ़ाय सर्वस्व हर्त्रे कर्ते नमो नमः वीरामाति रामाय रामनाथाय ते विभौ
नमो राजाधिराजाय राज्ञावधिगताय ते नमः पालाधिपतये पालाशाकृतते नमः नमः केयूरभूषाय गोपते ते नमो नमः नमः श्रीकण्ठनाथाय नमो तीकुचपाणये भुवनेशाय देवाय वेदशास्त्र नमोऽस्तु ते सारंगाय नमस्तुभ्यं राजहंसाय ते नमः कंकन कनकादग्धहराय कनकांगदहराय नमः सर्वोपवीतिने कनकांगदहराय नमः सर्वोपवीतिने सर्पकुण्डलमालाय कटिसूत्री कृताहिने वेदगर्भाय गर्भाय विश्वगर्भाय ते नमः ब्रह्मोवाच वीररामेति संस्तुत्वा ब्रह्माणां सम्मितो हरिः एतस्तोत्रवरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं य पठे श्रावेद्वापि ब्राह्मणान् वेदपारगान् स याति ब्रह्मणो लोके पापकर्मरतोऽपि वै तस्मात् जपेत् पठे नित्यं श्रावयेद ब्राह्मणच्छुभान् सर्वपापविशुद्ध्यर्थं विष्णुना परिभाषितम्। तो ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु ने पहले ये पूजन किया भगवान शंकर का, और फिर ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान स्तुति करके हमारा मन शांत हो गए। पुण्य प्रदान करने वाले तथा सभी पापों का नाश करने वाले इस उत्तम स्तोत्र का जो प्राणी पाठ करता है अथवा इसे वेद के पारगामी ब्राह्मणों को सुनाता है, वह पाप कर्म में लिप्त रहने पर भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अतएव सभी पापों की शुद्धि हेतु मनुष्य को विष्णु द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का नित्य जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए तथा हमें इसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को सुनाना चाहिए। So he's essentially talking about the greatness of this prayer, stotras that I just sang, and it provides some good outcomes, and therefore it should be sung and sung to the brahmanas and all nice people, and it takes away all the papas from our life. So that's what the Bhagavan Brahmaji is telling in the 19th chapter, which I just finished. इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्वभागे विष्णुस्तो नामाष्टदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विष्णु स्तव नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। सो नेक्स्ट विल गो टू द 19th चैप्टर, वेयर बताते हैं, अगला अध्याय 19वां चैप्टर है। इसमें बताते हैं कि महादेव जी द्वारा ब्रह्मा एवं विष्णु को वर प्रदान करना तथा उमा महेश्वर पूजन के रूप में लिंग पूजन की परंपरा का प्रारंभ। So in this chapter we'll talk about, we'll read about the blessings that Brahma and Vishnu got from Mahadev ji, Bhagavan Shankar ji, and also tell us about the culture of doing the Linga Pujan, the prayers of the Ling, the symbol, which signifies Uma Maheshwar, Bhagavan Shankar and his wife Uma, and it's used for their puja, their worship. So interestingly, when we do puja, some people put statues, but for example, when we have to pray Ganeshi, we also sometimes use other symbols like beetle, and that's ling, that's a symbol of, and we invoke Bhagavan Ganesh in that, and then we do the puja. So we have this art of not art, but the culture, the tradition of inviting the God into specific symbols, specific objects, and then through that praying the God. So it's just not we keep the statue and pray. We invoke the God upon the statue, and there are detailed ways, description of how to invoke, how a temple is created, and how gods should be placed there, and how they should be invoked into that. So there's a whole literature around that, and which is pretty interesting.
to read, which I didn't know actually. So it's very interesting to read. Hari Om. So we'll go on to the next chapter. 19वां अध्याय, the 19th chapter. Now in the background, I have the picture of Manikarnika Ghat. It has its own symbolism, importance regarding Bhagwan Shiv. This picture is from Varanasi, Banaras, where it's believed that Bhagwan Shankar resides. And we all believe in that he does reside. And what we are seeing in the background is the cremation of persons who die and the rituals around it. It's a very beautiful long ghat in Banaras, and everyone should visit it. It has beautiful, like several temples and very beautiful view from the river Gangaji. We don't call Ganges, we say Gangaji, Ganga Mata. That's the cultural aspect. So we'll start with the अध्याय 19, 19th chapter. 19वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे. सूत उवाच अथोवाच महादेवः प्रीतोऽहं सूरसत्तमौ पश्यतामा महादेवं भयं सर्वं विमुच्यताम् युवां प्रसूतो गात्राभ्यां मम पूर्वं महाबलौ अयं मे दक्षिणे पार्श्वे ब्रह्मा लोकपितामहः वामे पार्श्वे च विष्णुर्विश्वात्मा हृदयोद्भुवः प्रीतो अहं युवयोः सम्यग्वरं दद्मि यथेप्सितम् एवमुक्त्वा तु तं विष्णुं कराभ्यां परमेश्वरः पस्पर्श सुभगाभ्यां तु कृपानिधिः ततः प्रहृष्टमनसा प्रणिपत्य महेश्वरं ग्राह नारायणो नाथं लिंगस्थं लिंगवर्जितं यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ भक्तिर्भवतु नो नित्यं त्वयि चाव्यभिचारिणी देवः प्रदत्तवान् देवाः स्वात्मन्यव्यभिचारिणीं ब्रह्मणे विष्णवे चैव श्रद्धां शीतांशुभूषणः जानुभ्यामवनिं गत्वा पुनर्नारायणः स्वयं प्रणिपत्य च विश्वेश्वं प्राहामन्दतरं वशी आवयोर्देवदेवेश विवादामतिशोभनम् इहागतो भवान् यस्माद्व्यास दशमनायनौ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं मूर्ध्ना कृताञ्जलिपुटं स्मयन्. तो 19वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि इसके बाद तदनंतर महादेव जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूं. सो एट द एंड ऑफ दोस प्रेयर्स भगवान शंकर महादेव इज टेलिंग टू बोथ भगवान विष्णु एंड ब्रह्मा दैट हे आई एम सो हैप्पी विद यू. मुझ महादेव का दर्शन करो और सभी प्रकार के भय का त्याग करो. लुक एट मी, सी मी एंड गेट रीड ऑफ ऑल द फेयर. आप दोनों महाबली देवता पूर्व काल में मेरे शरीर से उत्पन्न हुए थे. बोथ यू गॉड्स हैड केम आउट इमर्ज फ्रॉम मी. संपूर्ण लोकों के पितामह ये ब्रह्मा मेरे दक्षिण अंग से, संपूर्ण लोगों के, द ग्रैंडफादर ऑफ दिस होल क्रिएशन, ब्रह्मा जी केम फ्रॉम द साउथ और द राइट साइड ऑफ माई बॉडी. तथा विश्वात्मा और हृदयोद्भव ये विष्णु मेरे बाएं अंग से उत्पन्न हुए थे. एंड भगवान विष्णु केम आउट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ माई बॉडी. मैं आप दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूं. आई एम सो मच हैप्पी विद यू. अतएव यथेच्छ वर मांगो, मैं उसे अभी दूंगा. यथा इच्छा वर मांगो, जैसी इच्छा वैसी मांगो. आस्क मी व्हाट यू वांट एंड आई विल गिव इट टू यू नाउ. वामे पार्श्वे में विष्णुर्विश्वात्मा हृदयोद्भवः प्रीतो अहम युवयोः सम्यग्वरम दद्मि यथेप्सितम्. इतना कहकर कृपानिधि परमेश्वर महादेव ने अपने दोनों सुंदर हाथों से प्रीतिपूर्वक उन विष्णु का स्पर्श किया. देन भगवान शंकर टच्ड भगवान विष्णु. एवं मुक्त्वा तं विष्णुं कराभ्यां परमेश्वरः स्पर्शं सुभगाम्यां तु कृपया तु कृपानिधिः. तब लिंग में विराजित तथा लिंग देह शून्य स्वेच्छा से विग्रह धारण करने वाले महेश्वर को
प्रणाम करके प्रसन्न मन से नारायण विष्णु ने कहा। सो तथा प्रहृष्ट मनसा प्रणिपत्या महेश्वरा प्राह नारायणो नाथम लिंगस्थम लिंगवर्जितम। लिंगस्थम एंड लिंगवर्जितम, सो वी थिंक ऑफ भगवान शिव एज बोथ in the form of symbol or with no body. So we think of him in a specific bodily form and then without bodily form, and these are two different ways of thinking about him. And um, and here they're mentioning about both and saying that Bhagavan Vishnu uh, told him something. What he said? यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ भक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयि चाव्यभिचारिणी। यदि आपके हृदय में हमारे प्रति प्रीति भाव उत्पन्न हुआ है, और यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आपके प्रति हम दोनों की सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। So this is what he's asking. He says that if you really love us and you want to give us blessings, then just give us this blessing that we always have full faith in you, we worship you, we love you, and that bhakti stays there, never ends. हे देवताओं, चंद्रमा को आभूषण स्वरूप धारण करने वाले महादेव ने ब्रह्मा तथा विष्णु को अपनी अचल श्रद्धा भक्ति प्रदान की। एंड भगवान शंकर, भगवान Mahadev, he gave both Brahma and Vishnu his bhakti. That, okay, you'll always have your mind in me. Devah pradattavan devah. Devah pradattavan, diya, gave him. Devah swatmanya bhicharinam. Brahmane Vishnave chaiva shraddham शीतांशु भूषण जानुभ्यामवनीं गत्वा पुनर्नारायणः स्वयं प्रणिपत्य च विश्वेश्वं प्राह मंदतरम वशी। पुनः जमीन पर घुटना टेकर प्रणाम करते हुए इंद्रिय जीत नारायण विष्णु ने साक्षात विश्वेश्वर महादेव से अत्यंत मधुरता से कहा। सो भगवान विष्णु इज नाउ बोइंग टू हिम, भगवान शंकर, एंड देन सेज दिस। व्हाट डज ही से? आवयोर्देवदेवेश विवादामतिशोभनम् इहागतो भवान् यस्मात् द्विवादशमनायनौ। हे देव देवेश, हम दोनों का यह विवाद तो अत्यंत मंगलकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि हम दोनों ने के इस विवाद को समाप्त करने के निमित्त आप यहाँ प्रकट हुए। So we got very lucky because of our fight, because of that you ended up coming here and we are able to see you, so thank you so much. उनका यह वचन सुनकर भगवान शंभु ने दोनों हाथ जोड़े तथा सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए वहां स्थित विष्णु से मुस्कुराकर पुनः कहा। सो ही स्माइल, भगवान शंकर स्माइल, एंड देन ही सेड द फॉलोइंग। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं मूर्ध्ना कृतांजलिपुटं स्मयन्। सो ही सेड दिस। व्हाट डज ही से? श्री महादेव उवाच, भगवान शंकर इज सेइंग, व्हाट डज ही से? प्रलय स्थिते सर्गाणां कर्ता त्वं धरणीपते वत्स वत्स हरे विष्णु पालय तच्चराचरम् त्रिधा भिन्नो याहं विष्णु ब्रह्म विष्णु भवाक्यया सर्गरक्षा लय गुणैर्निष्कलः परमेश्वरः सम्मोहं त्यज भो विष्णु पालयैनं पितामहं पाद्मे भविष्यति सुतः कल्पे तौ पितामहः। तो शंकर जी कहते हैं कि हे पृथ्वीपते, हे द हस्बैंड ऑफ अर्थ, उत्पत्ति स्थिति तथा संहार के कर्ता आप हैं। यू आर द रीजन फॉर द क्रिएशन, इट्स मेंटेनेंस एंड द एंड। हे वत्स, हे वत्स, हे हरे, हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। हे विष्णु, मैं निष्कल परमेश्वर ही ब्रह्मा विष्णु तथा भव रुद्र नाम से अलग अलग 3 प्रकार के रूपों में सृजन, पालन तथा संहार के गुणों से युक्त हूँ। हे विष्णु, आप मोह का त्याग करें और इन पितामह का पालन करें। ये पितामह पाद्म कल्प में आपके पुत्र होंगे। उस समय आप तथा आपके पुत्र रूप वे कमलोद्भव ब्रह्मा दोनों लोग मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। तदा द्रक्ष्यसि माम चैवं सोपि द्रक्ष्यति पद्मजः एवमुक्त्वा स भगवानस्तत्रैवान्तरधीयते। और ऐसा कहकर वे भगवान महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तथा प्रभृति लोकेषु लिंगार्चा सुप्रतिष्ठिता
लिंगवेदी महादेवी लिंगम साक्षान महेश्वर। और उसी समय से लोकों में शिवलिंग के पूजन की प्रसिद्धि व्याप्त हो गई। लिंग वेदी के रूप में महादेवी पार्वती तथा लिंग रूप में साक्षात महेश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। सो सिंस देन द प्रेयर्स ऑफ द शिवलिंग और द शिव सिंबल, इसकी द प्रेयर्स स्टार्टेड, एंड द लिंग वेदी इज द पार्वती एंड लिंग रूप इज साक्षात भगवान शंकर। हे देवताओं, समग्र जगत को अपने में लय करने के कारण यह लिंग कहा गया है। इट्स इट्स कॉल्ड लिंग बिकॉज इट कैन do laya of the entire world in itself. It's by laya, it means it at the time of pralaya, when everything ends, it's the ling. It can put everything together. It can put everything together when the world ends, when everything mixes into each other and it becomes just nothing. Because from that mixed nothingness, that matter emerges the whole universe, right? We think about Big Bang and all these theories. So there must have been time, according to these scriptures, that nothing existed. Nothing. No light, no sun, nothing, nothing, nothing. All this matter, energy, it was together. And then it separated in some way and then created this universe, right? So it created, and then this creation destroys at some point, just like everything destroys, there's an end. It goes in a cyclical fashion. We are born on the scale of 100 years. Humans are born, okay, from previous humans through fertilization and all that, and then we become like child and adult, and then eventually die one day, and then we die depending on whatever ritual, right? We become part of this planet, this creation once again, and then another boy is born somewhere in somebody else's family, and what they're eating, what we're eating, what we humans are eating, consuming, we are consuming the material from this planet, right? From the universe, water and fruits and vegetables and anything else that we're eating. But it's our own body also that becomes the part of this planet. So, but if we had some power to look at this whole creation from outside the creation, then imagine that one day, if it all ends together, it will become something homogeneous, right? And then at a microscopic level, if you think, then everything is frequency, right? We talk about electrons and protons, which are explained by certain frequencies. Okay, so I look certain way because certain frequencies have been cobbled up together to give the appearance in the form of different molecules, right? Carbon hydroxide, hydrogen, whatever, the different bonds, covalent bonds, and electromagnetic, all this stuff that we study in science. But yeah, but that apart, here it just says that कि हे देवताओं, समग्र जगत को अपने में लय करने के कारण यह लिंग कहा गया है। और जो विप्र शिवलिंग के समक्ष लिंग आख्यान का प्रतिदिन पाठन करता है, वह शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। लयनालिङ्गमित्युक्तं तत्रैव निखिलं सुराः यस्तु लिङ्गं पठेन्नित्यम् आख्यानं लिङ्गसन्निधौ स याति शिवतां विप्रो नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीलिङ्गमहापुराणे पूर्वभागे विष्णुप्रबोधो नामैकोनविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विष्णु प्रबोध नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। But it's just so inspiring to see such a beautiful, poem, story, history described in such beautiful, short Sanskrit shlokas, which rhyme together. And all this was believed to be written thousands of years ago. So our ancestors were definitely very smart people who could think about the creation, which makes sense, isn't it? Okay, so next we will go to chapter 20, 20वां अध्याय, and we'll read about शेष शैया पर आसीन भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव,
भगवान शिव की माया से दोनों का विमोहित होना, विष्णु द्वारा ब्रह्मा के प्रति शिव महात्म्य का कथन. So we'll read about how the Brahmaji was created out of the lotus that emerged from his navel, and how Bhagwan Shankar, his illusion, his maya, um, confused them, removed here, and and then Bhagwan Vishnu tells about the importance of Shiva, Shankar Bhagwan. Hari Om. I will cover that in the next video. And that's another very interesting story. And so wait for that video on this topic. Om Namah Shivaya. And forgive me for any errors. As I said, I'm no spiritual teacher. I'm not guru or anything. I'm just a student of these literature and learning about the beautiful work done by our ancestors in the form of this vast volume of literature that exists in Sanskrit, the Vedas, Puranas, Mahabharata, Ramayana, Upanishad, so many of them, which is so impressive. Hari Om.